दूसरी पाकिस्तान वहाँ गए थे कमाने के लिए। हैदराबाद गए थे, क्या नहीं लगा था। The other day, I passed by my village school. The classrooms are empty with no teachers, walls broken and roofs leaking. I stood there for a while and imagined that I went to school and not to work daily. My school building is well made. Teacher is teaching and with lots of children learning and playing. बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जो माओवाद से ग्रसित हैं और बहुत भारी समस्या है वहाँ पे। टीचर वहाँ अंदरूनी गांव में जाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई टीचर वहाँ पर है भी तो वो समय पे स्कूल नहीं जाता है, जाता भी है तो वो डर के मारे स्कूल बंद होने से पहले भाग आता है वहाँ से। RT believes in this social audit kind of a movement in the state of Chhattisgarh, and this is more specifically to look at the all the both infrastructural facilities and also the learning outcomes in the schools in a social audit perspective. They brought the community to the school to look at what are the infrastructural gaps, and similarly whether the teacher is present in the school, whether the students are learning in classroom processes, and to see whether this community can contribute to the school process. And we have seen a remarkable change in terms of this community contribution to the school processes. हमने देखा कि डाटा की बड़ी कमी है, जिस डाटा को मिरर के तरह हम देख सके, एनालिसिस कर सके और पॉलिसी लेवल में इन्फ्लुएंस कर सके। इन जगह में यूनिसेफ की एक बड़ी भूमिका रहा। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को कैपेसिटाइज करके उनको नॉलेज इक्विप के साथ साथ एक एजुकेशन में काम करने के लिए तैयारी कराया। Our idea in the RT Watch program was to create a pressure on the system, and we want to work on both sides of the equation. We asked ourselves, suppose if we work with a group of organizations across the state and we do so over a period of a few years, then there would be a vibrant civil society network that can start asking questions and that can start critically engaging with the state on elementary education, and particularly the Right to Education Act and so on. So that, teachers are posted in all schools, they come regularly on time, and if they come to school, they teach children and meaningfully use their time. And also we all become accountable for results. The program started with trained facilitators conducting surveys to identify the reasons for children who are not going to school and getting them back to school. गांव में सर्वे करते वक्त बच्ची के बारे में पता चला। उसके माँ से जाकर मिली और उसकी माँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही। बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी। उनके घर से स्कूल 1.5 किलोमीटर लगभग दूरी है। उसका सोच था कि मैं स्कूल जाते रहूंगी, कहीं बीच में रास्ते में हाथी आकर मुझे मार न दे, और उसके माँ से ही वो चिपके रहती थी। तो उसकी माँ बोलती पढ़ाई करके भी क्या करेगी, मेरे साथ काम सीख रही है, इस टाइप से। फिर समझाते समझाते समझ गई, फिर बोली कि ये यहाँ से तो स्कूल नहीं जाएगी, इसको कहीं बाहर भेज दीजिए तो ये वहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो मैं यहाँ शासकीय कन्या आश्रम कासाबेल की हॉस्टल अध्यक्षिका से बात की उसे जोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सीट तो नहीं है लेकिन कोरवा बच्ची है तो मैं उसे रखूंगी बोली। अभी नियमित स्कूल में रहती है, अच्छे से पढ़ाई कर रही है, सीख रही है। Children who migrate like Chandani are also back to school. मेरी अम्मा मेरे पापा वहाँ पे हैदराबाद में कमाने का पानी मानी भरते हैं, काम करते, हाथ पैर दुखता है सर,
ईटा गिट्टी उठाने रहता कभी इतनी बड़ी पढ़ने लिखने के अच्छा लगता है, खेल अच्छा लगता है, साथ मैडम बनना चाहती हूँ बच्चे को पढ़ने से। We initiated the program on human trafficking, especially with a focus on girls who are mostly being trafficked from northern part of the state. And the first 2.5 years we focused on working to rescue these girls and bring them back, reintegrate them with their families. And this program really helped to focus on the out of school children, especially in those regions from where children are mostly going out for trafficking. UNICEF developed a RTE Watch tool to review and assess schools based on indicators specified in RTE Act. हम लोग 4 भागों में डाटा कलेक्ट करते हैं। एक प्रथम है मूलभूत सुविधा पे, दूसरा है बच्चों के एक्टिविटी पे, तीसरा है एसएमसी पे और चौथा है कक्षागत प्रक्रियाओं पे। पहले शौचालय देखे, शौचालय में जो कमी होगा उसमें टीचर से बात करेंगे, सर आपने हमको शौचालय देखे इसमें इस प्रकार की कमी है, उसको मार्क करेंगे। फिर देखेंगे कि आपके पास क्या चीज़ है, किचन सेट में हवादार है कि नहीं, किचन साफ सुथरा है कि नहीं, उसमें पानी निकलने की सुविधा है कि नहीं, ऐसे सारे बहुत सारी गतिविधियां उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कक्षा में गए टीचर के साथ, टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे, हम लोग पीछे बैठ कर क्या उसमें हम लोग का 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग मिलान कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या टीचर उन सभी विषय पर क्या उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, बच्चों को बार बार सवाल करते, बच्चों क्या बिना भय से उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। ये सारी प्रक्रिया को हम लोग वहाँ बैठ के देखें। जो हमारा सॉफ्टवेयर में हम लोड करने से क्या है वो डाटा कलेक्ट रहता है, तो वो डाटा जब एक साथ कलेक्ट करेंगे तो किसी को दिखाने के लिए, उस एविडेंस के लिए हम ये सारे डाटा कलेक्ट करते हैं। The data findings are shared with parents, teachers and village elders for actions to be taken. As things started changing with RTE Watch, children are enjoying going to school. The new teaching plans, learning methods and reading corners are making learning fun and easy. दक्षता रहता है इसमें, जैसे हिंदी में पढ़ना, बोलना, लिखना, दैनिक जीवन में व्यवहार, और जैसे छोटे छोटे सवाल हैं जैसे गिनती, पहाड़ा वगैरह, इसको ये जानता है कि नहीं जानते, संबंध रहता है गणित से। बच्चों में जो कमजोरियां हैं उनसे हमको पता चल जाता है और उससे क्या है हम उनके लिए अलग से फिर प्रयास करते हैं कि कैसे आगे लाएं। जानते हैं इसको देखे हो, ये सिल्वर का बना हुआ है, देखो मैं इसको ठोकूंगा, है ना। हर बच्चे के जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में भी अपने को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा किस स्तर पे है, तो उसको हम हर चीज को फोकस करते हैं। फिर एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी जो हमारी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ पाते हैं उन बच्चों के एक बच्चों को सभी ग्रुप में शामिल करते हैं और वो बच्चा उस ग्रुप का लीडर होता है और वो अपने साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं और सभी बच्चों को जो हम TLM रखे हुए हैं, जो हमारी शिक्षण सामग्री है, उसके माध्यम से उनको बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों के डर को दूर करने के लिए बच्चों से एक हम दोस्ती का हाव भाव उनसे रखते हैं और बच्चों को हम एक आनंद पूर्वक माहौल में, बच्चों में किसी प्रकार का डर नहीं है, बच्चों में किसी प्रकार का भय नहीं रखते और हर बच्चों को हम बोलने का अवसर देते हैं। घर के भवन घर बलसोत है, घर के काय बलसोत, तो देखे कि बच्चा क्या समझ पा रहा है, हिंदी में तो नहीं समझ पा रहा है। गांव में क्या होता है, पहाड़ को डोंगरी बोलते हैं, खेत माने बच्चे नहीं जानते हैं, जानते रहते हैं मगर नहीं जानते हिंदी में लिखा हुआ है खेत क्या होता है। अगर खेत को क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे जैसे बेड़ा है तो बच्चा समझ जाएगा। गणित में जोड़ने का बताई तो हल्बी में बताई तो सभी बच्चे समझ गए। हल्बी में बोलते हैं तो बच्चे का जो भय है वो मिट गया, तो हल्बी में बोलते हैं तो ज्यादा स्नेह का भाव हो गया और बच्चे भी सीखने में उनको सरलता होती है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे थे वो भी आना शुरू कर दिए हैं और स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है बच्चों में। गेम में ही पढ़ाई को ऐड कर दिए हैं, तो जो बच्चे जैसे पहाड़ा याद करने को बोझिल समझते थे
तो हम खेल के माध्यम से उसको पहाड़ा याद कराते हैं। उसका ध्यान खेल में है, लेकिन हम उसको खेल को पढ़ाई के साथ जोड़ दिए तो वो पहाड़ा भी याद कर लेता है, जो भी चीज एक्टिविटी कराना चाहो वो कर लेता है। विज्ञान लर्निंग मेला था, उसमें ये बच्चे गए थे, तो उनको वहां जाने से बहुत अच्छा लगा था। तो बाहर से भी बच्चे वहां आए थे, बहुत सारे लोगों से वो मिले जुले, तो उनमें एक उत्सुकता बढ़ गई है। और जैसे किसी चीज को अब पूछते हैं कि कुछ मॉडल बनाना है तो कि इसको हम किस प्रकार से बनाएं, तो उनको बहुत उत्साह बढ़ गया है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ये हमारे स्कूल में लाइब्रेरी हम पूरा चलाते हैं। एक हफ्ते में 2 बार लाइब्रेरी आते हैं। इसमें से पुस्तक पढ़ते हैं, कहानियाँ, कई कविताएं लिखी है इस पुस्तक में। तो अपन कठोर मेहनत करा था, मेहनत के मतलब हम लोग अपन मेहनत करा था तो दूसर से डरना क्या, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है। RTE Watch is not only making efforts to improve learning inside schools, but also outside schools in communities with support of around 3,000 trained RTE Mitra volunteers. RTE मित्र के जरिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल द्वारा पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे को ओनली पढ़ाने से वो पढ़ते नहीं हैं। उनको हम लोग गेम के द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे और आते हैं और मतलब पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देते हैं। बच्चे पहले घर में नहीं पढ़ते थे, अब उनको बोलोगे पढ़ने के नाम से तो वो जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। आसपास के बच्चे हैं वो लोग मतलब कमजोर थे पढ़ने लिखने में, ड्राइंग में। मैं सोची कि इन लोगों को थोड़ा बहुत अपना टाइम देकर इन लोगों को पढ़ा सकूं, तो इसलिए मैं पढ़ाऊं। बच्चों को पढ़ाना है और गांव का तरक्की करने के लिए तो मतलब पढ़ा सकती हूँ ना। Teachers now use educational resource centers developed by RTE Watch to meet and discuss issues related to schools. यदि हमको कोई कमजोरी महसूस हुआ बच्चों में या टीचर में, इस रिसोर्स सेंटर के माध्यम से हमें उसकी ट्रेनिंग भी कराई गई। उससे हमारे शिक्षक साथी सब सीखे और जा कर के बच्चों में उसको बांटे। इससे हमें बहुत बदलाव हुआ। कुछ बुकें मिली जैसे प्रशिक्षण कैसे देना है, और मेन प्रतिदिन टीचर आए तो बच्चे भी बराबर आने लगे। ये हमारे रिसोर्स सेंटर के मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा बताया गया कि कैसे बच्चे तक आपको कैसे बच्चे को स्कूल में लाना है। Working towards creating a perfect school environment for children, the school management committees are representing their problems with various service providers. ये प्रोजेक्ट आने के बाद हम लोग को सब समझ में आया कि जिम्मेदारी हमारा क्या है। हम लोग को शिक्षा सुधार के लिए सभी को सहयोग लेना पड़ रहा है। कुछ समस्या होने से बीओ लोग के पास चले जाते हैं, शिक्षा अधिकारी का पास मिल जाते हैं, अपना गांव का सरपंच को बताते हैं ऐसा ऐसा है स्कूल का व्यवस्था, तो वो भी कुछ मदद करते हैं। बीओ के साथ में जो शिक्षा अधिकारी है, प्रिंसिपल है, एक उच्च अधिकारी के साथ में मीटिंग होगा। उसके बाद फिर शिक्षक के साथ में मीटिंग होगा, ताकि वहाँ स्कूल का शिक्षा का जो कानून है वो सही पालन हो, तो हमारे बच्चे लोग को किसी प्रकार की कमी नहीं होगा तो बच्चे स्कूल आना स्वाभाविक है। एसएमसी कमेटी द्वारा कई प्रश्न उठते थे स्कूल से संबंधित, उस समस्या के लेकर के मेरे पास आते थे। उसमें मैं भी उनसे वार्तालाप करके उन छोटे मोटे समस्याओं को उनसे सहयोग लेके समाधान करने का प्रयास किया। Work done by RTE Watch has inspired village panchayats to actively participate in school development. अभी इससे पहले ग्राम सभा में ये एजेंडा नहीं आता था, लेकिन जब से ये प्रोग्राम चला है तब से ये जानकारी हम सबों को मिला है कि किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उस विषय को लेके हम ग्राम सभा में जो भी एजेंडा आता है तो हम शिक्षा के बारे में हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं कि शिक्षा कितना महत्व है। This was the first program in which we saw that the program is insisting on focusing the capacity building of non-government organizations. Whatever activities were found by the RTE Watch members, they tried to report each and everything with the senior level officer, so that our officers were also aware what is going inside the field, so that they can take necessary action and necessary support
required in the school. RT Watch program, if we look at the 3 cycles of data that we have collected, there is definitely an improvement in terms of attendance of teachers, for example, attendance of children, also improvement in learning levels. Thousands of children in 22 districts of Chhattisgarh are now going to 420 government primary schools and 300 government upper primary schools, and many more are joining the RTE Watch program to provide better classrooms with teachers, libraries, toilets, playgrounds with boundary walls and clean drinking water to keep the children safe and happy. Thank you, RTE Watch.